اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ خبر بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کا فائنینشیل بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ شروع ہو گیا ہے اور سرکاری کارروائی اس پر ہو رہی ہے۔ کاوڑ یاترا کے پیش نظر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کاوڑ یاترا ہونے والی ہے، تو کاوڑ یاترا کے پیش نظر یو پی پولیس نے دکانوں کے باہر نام لکھنے کا فرمان جاری کر دیا کہ دکان کس کی ہے، جس سے اب سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے اور کھلے عام پتہ چلنے لگا ہے کہ گویا کہ یہ دعوت دی جا رہی ہے دنگائیوں کو، فسادیوں کو، آتنکوادیوں کو کہ نام دیکھ کر توڑ پھوڑ کرنا دکان کس کی ہے۔ خیر، پون کھیڑا، اکھلیش یادو، اسد الدین اویسی، شاعر جاوید اختر نے اس پر شدید تنقید کی ہے۔ حکم نامے کو نازی ازم سے تعبیر کیا، اور یقیناً یوگی کسی نازی سے کم نہیں ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ مجلس مشاورت نے بھی اس پر سوال اٹھائے ہیں۔ اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع میں واقع ایک نام نہاد آشرم کے سنچالک سوامی ایشور مہاراج کی مانگ پر یو پی پولیس نے 2023 کی کاوڑ یاترا شروع ہوتی دکانداروں کو ہدایت دے دی ہے، یعنی 24 کی، کہ وہ اپنے ہوٹلوں اور ڈھابوں اور اپنے کارکنوں کا نام نمایاں طور پر درج کریں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے پھلوں کے ٹھیلوں پر بھی ان کے ناموں کی پرچی لگائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، یعنی اس سے ایک دم کلیئر ہو رہا ہے کہ دنگائیوں، فسادیوں، آتنکیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھیں، نام دیکھ کر ہی دکان کو لوٹنا، توڑنا پھوڑنا، دنگا کرنا، فساد کرنا، آگ لگانا۔ اور حکومت کے اس حکم نامے کو نازی ازم اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ نازی جرمنی میں صرف خصوصی دکانوں اور گھروں پر نشان بناتے تھے۔ جی ہاں، اور یہ وہی نازی ازم کا اسٹائل اتر پردیش میں یوگی استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اتر پردیش کے گونڈا سے۔ جی ہاں، گونڈا میں ڈبروگڑھ ایکسپریس کے 21 ڈبے پٹری سے اتر گئے ہیں، جس میں 4 لوگوں کے ہلاک ہونے اور 35 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ گونڈا میں ٹرین کے 21 ڈبے پٹری سے اترے، بوگیاں پوری بکھر گئیں، شیشے توڑ کر مسافروں کو جان بچا کر باہر نکالتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ جانکاری کے مطابق چنڈی گڑھ سے گورکھپور جاتے ہوئے ٹرین کے کوچ
पटरी से उतर गए। डिब्बों के पटरियों से उतरने की वजह से मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। शीशे तोड़कर मुसाफिरों को बाहर निकाला गया। जख्मों के शोर आहोबका से अजीब दिलखराश मंजर था। दो मुसाफिरों के पाँव बिगड़ गए हैं। फौरी तौर पर जख्मियों को चारपाई के जरिए मकामी अफराद अस्पताल ले गए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद की मौत और 35 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि अभी तक जख्मियों की सही तादाद सामने नहीं आ सकी है। नाज़रीन, रियासत आसाम से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि आसाम में जो मुख्यमंत्री है वो मुसलमानों के खिलाफ कितने जहर उगलता है, ये सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी लोकसभा के प्रचार प्रसार रैलियों सभाओं में भी कितना जहर इस शख्स ने बीजेपी के स्टेजों से उगला, ये सबको मालूम है। तो मुस्लिम दुश्मनी इसके रग रग में, खून के कतरे कतरे में भरी हुई है और लगातार ऐसे कानून लाता रहता है जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। और अभी इस वक्त एक कानून लाया है उसी ने गोया कि आसाम में मुस्लिम मैरिज एक्ट मंसूख कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। वजीर आला बिस्वा ने एक्स के जरिए, ट्विटर के जरिए ये मालूमात दी है। बचपन की शादी यानी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात मुतारफ़ करवाकर अपनी बेटियों और बहनों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए अहम कदम आसाम की हुकूमत ने उठाया है, यानी इसे अहम कदम बताया जा रहा है। आसाम काबीना की मीटिंग में वो कहता है कि हमने आसाम रिपेलिंग बिल 2024 के जरिए आसाम मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट और कवायद 1935 को मनसूख करने का फैसला किया है। यानी जो मुसलमानों से रिलेटेड कानून है वही मनसूख हो रहे हैं, जिससे झलक रहा है कि असल मकसद क्या है। नाज़रीन, पटना से बड़ी खबर आ रही है कि पटना एम्स से 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया है। मालूमात के मुताबिक ये तीनों 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले की समाअत होने जा रही है। इससे पहले भी सीबीआई को कामयाबी मिल चुकी है। सीबीआई धीरे धीरे पेपर लीक करने वाले गिरोह के सुराग रसा तक पहुंच गई है, जिसके बाद सीबीआई टीम ने पटना एम्स में जेर तालीम मेडिकल के 3 तालिबे इल्मों को हिरासत में ले लिया है। नाज़रीन, छत्तीसगढ़ से बड़ी बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं इसे बुरी खबर ही कहूँगा क्योंकि अब बदमाशी छत्तीसगढ़ में भी की जा रही है और बदमाशी यह है कि छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी को नाफिज करने की तैयारी हो रही है। वहाँ के नायब वजीर आला विजय शर्मा ने कहा कि रियासत छत्तीसगढ़ में यकीनी तौर पर यूसीसी लागू किया जाएगा, यानी उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ हुकूमत रियासत में यकसा सिविल कोड यूसीसी नाफिज करने जा रही है। वहाँ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी को यकीनी तौर पर लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हुकूमत हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाली ताकतों को खत्म करेगी। नायब वज़ीर आला ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म का मसला अगले 3 सालों में हल हो जाएगा। विजय शर्मा बुध को दिल्ली के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने मरकजी वज़रा से मुलाकात की। और आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी हर जात और हर बिरादरी के लिए नुकसानदेह है और ये सिर्फ मुसलमानों का नुकसान का मसला नहीं है, बल्कि ये नापाक बिल है, जिसे मैं नापाक बिल कहता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी की है और इसे नाकाबिल कबूल और संविधान के खिलाफ नापाक बिल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी बताया है। और यकीनन ये ऐसा नापाक बिल है कि ये आएगा तो मुल्क का अमन ख़त्म होगा और सारी छोटी छोटी बिरादरियां परेशान होगी, क्योंकि अपने अपने मजहब के मुताबिक उनसे अमल करने की आज़ादी को छीना जाएगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से 2 नए जजों की शपथ। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की हलफ बर्दारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को यानी अब 2 नए जज सुप्रीम कोर्ट को मिल गए हैं। इन नए जजों को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हलफ दिलाया, शपथ दिलाया। दोनों जजों की तकरीर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर शुदा तादाद अब 34 के करीब हो गई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस N कोटेश्वर सिंह और जस्टिस R महादेवन को हलफ दिलाया। जस्टिस सिंह मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले पहले शख्स है। इस सादा हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस और बार के अफसरान ने शिरकत की। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वजीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि अपोजिशन को चाहिए कि वो वजीर आज़म के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान देने से परहेज करें और अपनी सियासी गुफ्तगू में अपोजिशन शाइस्तगी, नरमी और संजीदगी को बरकरार रखें।
भारतीय जनता पार्टी ने जुमेरात को कांग्रेस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तशद्दुद भड़काने वाले बयानात का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि सियासी हरीफों को निशाना बनाने के लिए तकरीरों में कत्ल और तशद्दुद जैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब लोग ये कह रहे कि अपोजिशन से ये कहा जा रहा है, लेकिन खुद वजीर आजम जो इतनी बड़ी पद पर बैठकर बेशर्मी और बेगैरती के साथ लोगों का मजाक उड़ाते हैं, दीदी ओ दीदी, और न जाने कैसी कैसी घटिया स्टाइल इख्तियार करते हैं, तो तब क्यों वजीर आजम को शर्म नहीं आती? वजीर आजम क्यों संजीदगी और शाइस्तगी को इख्तियार नहीं करते हैं? वजीर आजम ने कई इश्तियाल अंगेज भड़काऊ भाषण दिए हैं, मुसलमानों को घुसपैठिए कहा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा। तो जब इतनी बड़ी पद पर बैठकर खुद वजीर आजम घटिया जबान इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ताल्लुक से लोग अच्छी जबान इस्तेमाल करे, ऐसी उम्मीद रखना तो जाहिर बात है कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि गिव एंड टेक का मामला दुनिया भर में चलता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, कोल्हापुर के विशालगढ़ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि विशालगढ़ गाजापुर, जहां पर भगवा आतंकवादियों ने मस्जिद में घुसकर आग लगाई, कुरान पाक की बेहुरमती की, तोड़ फोड़ की और बाबरी मस्जिद की याद ताज़ा करते हुए मीनारों पर, गुंबद पर चढ़कर वहां पर कुल्हाड़ियाँ चलाई, इसको लेकर अब पूरे महाराष्ट्र में माहौल ख़राब है। बल्कि ख़राब नहीं है, ख़राब किया जा रहा है। ये खुलकर बात सामने आ गई कि लोकसभा में बीजेपी को जो करारी शिकस्त और हार हुई है, तो अब विधानसभा में माहौल ख़राब करके अब बीजेपी फ़ायदा हासिल करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को ये लग चुका है कि राम जी भी काम नहीं आए हैं, धर्म का कार्ड भी काम नहीं आया है, यूसीसी भी काम नहीं आया है, एनआरसी भी काम नहीं आया है, तो अब दंगे फसाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा लोग मान रहे हैं। लेकिन खैर, विशालगढ़ में जो कुछ भी हुआ, सबसे पहले मैदान में जमीयत उलमा गई है, जो हमेशा हर जगह फसाद ज़दा मुतासरा इलाके में जमीयत उलमा पहुँचती है। उस वक़्त भी हलीमुल्ला कासमी साहब, जो जमीयत उलमा अरशद बद्दी के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, उनका बड़ा बयान आया था। कोल्हापुर के हमारे जो अध्यक्ष है जमीयत उलमा अरशद बद्दी के, उन्होंने बाकायदा पूरी रिपोर्ट पेश की थी। और आज भी खबर आ रही है कि जमीयत उलमा महमूद बद्दी की भी एक टीम वहाँ पर गाजापुर पहुँची है और वहाँ मुतासरीन से मुलाकात की है। दौरे के मौके पर ही नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार से मुलाकात करके वहाँ पर फौरी अमन की बहाली की जाए और मुतासरीन की इमदाद की जाए, ऐसा मुतालबा जमीयत उलमा के डेलीगेशन ने किया है। एक्चुअल में अफसोस ये है कि अभी मुसलमान सियासी पार्टियां इसमें भी सियासत कर रही है कि हमने पहले आवाज़ उठाई और हमारे कायद ने पहले ये कहा और हमने ये कहा। हम ये कह रहे हैं कि आप सब एक हो जाओ, खुदा के वास्ते कौम के मामले में सियासत मत करो और सियासी रोटियां न सेको। नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश के तहरीकी इल्मी शहर देवबंद से बड़ी खबर आ रही है। अफसोसनाक खबर है, नमनाक खबर है कि करंट लगने से 2 तालिबे इल्म जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। दारुल उलूम वक्फ दारुल उलूम देवबंद समेत मदारिस के तलबा में गम की लहर है। देवबंद में 2 नौजवान तालिब इल्म हादसाती मौत का शिकार हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इत्तला के मुताबिक एक कर्नाटक के मौलवी मोहम्मद साद कासमी हैं, जो फिलहाल जामे मस्जिद अमरोहा में ज़ेर तालीम थे। वहीं दूसरे दारुल वक्फ देवबंद के हफ्तुम अरबी के तालिब इल्म मौलवी हबीबुल बशर मीरठी है, जो करंट लगने से शहीद हुए हैं। अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, दर्जात को बुलंद फ़रमाएँ और अहल खाना को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाएँ। देवबंद के मोहल्ला खानका के इलाके दारुल वक्फ के पास करंट लगने से एक मदरसे का तालिब इल्म जाँ बहक हुआ। बताया जा रहा है कि तालिब इल्म कर्नाटक का रहने वाला था, जो अमरोहा के मशहूर मदरसा जामे मस्जिद अमरोहा में पढ़ता था और वो देवबंद में अपने दोस्तों से मिलने आया था। कर्नाटक का रहने वाला मोहम्मद साद 24 साल गुज़िश्ता हफ्ते दादी के इंतकाल पर अपने मदरसा जामे मस्जिद अमरोहा से छुट्टी लेकर अपने घर गया था, जहाँ से वापसी के दौरान तालिब इल्म अपने दोस्तों से मिलने मंगल को देवबंद में अपने दोस्तों से मिलने गया। बताया जा रहा है कि बुध की सपहर साद दारुल वक्फ से कुछ फासले पर वाक़े मदरसे मेराजुल उलूम गया हुआ था। यहाँ एक करीबी हजाम की दुकान से मुत्तसिल खड़ा हो गया, जो बारिश की वजह से बंद थी और दुकान के शटर में बिजली का करंट आ रहा था। अचानक साद उसकी जद में आ गया। तो खैर, इस तरीके से 2 तालिब इल्म
شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ممبئی میں مسلم پریشر گروپ قائم ہوا ہے۔ جی ہاں، جو مسلمانوں کو اسمبلی، مسلمانوں کے سماج کے مسائل حل کرنے کے لیے مسلمانوں کو اسمبلی اور کارپوریشن میں ہر پارٹی سے ٹکٹ دلانے کے موضوع کو لے کر کام کرے گا۔ مسلم پریشر گروپ کی شروعات ہوئی ہے ممبئی میں، اور اب ان لوگوں کو عوام اور خواص کی بھرپور تائید بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس گروپ کے ذمہ داران شعیب خطیب اور الطاف پٹیل کے ذریعے اٹھائے گئے سوالات اب ہر سیاسی جماعت کا لیڈر اٹھا رہا ہے۔ اردو اخبارات میں ان لوگوں کے ذریعے اٹھائے گئے سوالات کو لیڈران، علماء کرام، سماجی شخصیات بھی موضوع بحث بنا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس گروپ کے قائم ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ مسلمانوں اور این جی او سے مسلم پریشر گروپ سے جڑنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ پریشر گروپ کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ اب شہر میں مزید پریشر گروپ بنائے جا رہے ہیں، اور اس خبر کو دکھانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ واقعتاً ہر شہر میں ایسے مسلم پریشر گروپ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے سماجی مسائل کو، سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا ایک پریشر قائم کرے اور اس پریشر کے ذریعے سے بڑے بڑے کام ہو جائے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔